So welcome back to the channel, guys. So today I was gonna post a video about the writing, but I couldn't post it due to some editing issues. It was not being properly edited, so I dropped it, and I'm today gonna drop the video regarding the reading module of IELTS. Basically, I will be telling you all the tips and tricks of this solving this reading too, and I will solve this reading in front of you guys. And I'm gonna set a timer of 40 minutes, and I'll try to solve this reading in 40 minutes. As we are given a total of 60 minutes to solve the reading passage, all the three passages, and in 60 minutes we have to transfer the answers to answer sheet 2. But what I will be doing, I will not be transferring the answers. I'll just be marking the answers here, and then I'll check the answers from the internet, and then I'll tell you the total score. Meanwhile, I'll also tell you how to solve reading and what is skimming, scanning, how to easily locate answers, how to not read the full passage and still get the answer. I'll be telling you about all this stuff in detail in this video. So don't forget to like and comment if you have any queries, and if you like the video, and do remember to subscribe the channel, as I'll be posting more videos in the upcoming future regarding all the modules of IELTS. And I'm gonna change the topics to a different extent. I'll be giving you some special techniques through which you will be able to improve all of your modules, and specifically speaking, because in that module most of the individuals get stuck, and I think that the speaking modules needs more attention rather than other modules. And reading and listening can be solved by any individual, most of the individuals, I would like to say. But in the writing part, and most importantly in the speaking part, there is some issue faced by other people, and the issue is mostly regarding that they cannot speak properly and they cannot speak fluently, the lack coherence, and their pronunciation is not good, all these matters. But I'll surely be solving all these queries in just a span of time. It will not take a long, and I'll be dropping I'll be dropping some tips in a short video regarding reading too. Reading tips I'll be dropping in a short video, in a shorts video. I'll drop it at 10 p.m. Yes, nearby 10 p.m. today, and I'll drop it in a shorts form. And basically, now I'm gonna solve this reading passage. So let's move on to here. In 40 minutes, I'm gonna set a timer here of 40 minutes, and as soon as the timer gets over, I'll stop writing. I'll stop finding answers, and if I think so, I'll be able to solve all the passages at that time. Then I'll look out for the answers on the internet, and then we'll tell you the total score, and I'll also tell you the mistakes that I have made and that you guys should not make, and where I would think that there is some type of guidance needed. I will surely dedicate that to you too. So let's start this video from here, especially the reading passage. Let's first start this timer. 40 minutes. This timer gets stuck most of the time. And then it stuck me. Pause. It's paused. Yes. Now it's played. Okay. So the timer has begun. And now, just a second. Let me make it more clearer for you guys. Yes, now it's clear. Yes. Okay, so the first passage is home, the new workplace. Okay, let's directly look at the questions. The first section contains fill-ups and answers to them too, but we have to match them. And okay, this A to F. Okay, A to F answers are given in this passage for 1 to 8 questions. We have to locate them, and it is written that there are more descriptions than people, and you may use any of the choices more than once. So it is must that you need to underline all these options, all these queries and notes, that we can use any of the choice more than once. Okay, and after that there's an MCQs. Okay, in the first passage there are 8 fill-ups, fill in the blanks, and approximately 5 MCQs. Let's solve them.
Firstly, underline the keywords. First one is understand. No, first one is fill in the blank. Needs to be good at maths. Dash needs to be good at maths. मैथ्स के बारे में बात हो रही होगी उसमें, वो जो कर रहा होगा बात उस बंदे के साथ मैच करना है इसको. डैश नीड टू बी गुड एट मैथ्स. यहाँ पे 7 ऑप्शंस दिए हैं, या तो ये 6 बंदे होंगे, या नन ऑफ द अबव होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा. ये सब आंसर्स होंगे. उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात हुई होगी. थर्ड फिलअप है हैज बीन वर्किंग फ्रॉम होम फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड. लॉन्गेस्ट पीरियड के वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम द लॉन्गेस्ट पीरियड. लॉन्गेस्ट पीरियड के बारे में बात होगी. होम वर्किंग के बारे में तो सारा पैसेज है ही, तो इसको अंडरलाइन करने का फायदा नहीं है. एंड नेक्स्ट कम्स डैश ऑल्टर्ड देयर हाउस टू बी एबल टू वर्क एट होम. ऑल्टर्ड देयर हाउस. ऑल्टर्ड इज द कीवर्ड हियर. हाउस भी काफी जगह मिलेगा, वर्क एट होम भी मिलेगा आपको बहुत जगह. उसके बाद है डैश डजंट नीड टू इंटरेक्ट विद क्लाइंट्स टू कैरी आउट देयर बिजनेस. डजंट नीड टू इंटरेक्ट विद देयर क्लाइंट्स. यहां पे हमें अंडरलाइन करना है क्लाइंट्स, बिजनेस, इंटरैक्ट. ये 3 अंडरलाइन कर लिया मैंने. ये 3 जहां मिल जाएंगे आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा. 7th है डैश हेल्प समवन एल्स टू रिटेन हिज और हर कैरियर. कैरियर और रिटेन ये 2 कीवर्ड्स हैं. उसके बाद है 8 डैश लिव्स ऑन द कोस्ट. कोस्ट पे बात होगी. उसके बाद ये 8 फिल इन द ब्लैंक्स अंडरलाइन कर लिया. उसके बाद है 9 to 13. उसके बाद स्कॉट मिलर. उसके बाद 4 ऑप्शंस दी हैं. Had always wanted to work from home, no longer has the original reason. पहला है स्कॉट मिलर जो MCQ है. मैं आपको वो जो सारा मैं कर रहा हूँ सॉल्व, इसका मैं आपको इसमें नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा कि इन पैसेजेस के नाम क्या क्या है, और आप गूगल से इनके आंसर्स भी चेक कर सकते हो. अगर आपने कुछ सॉल्व करना हो, अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो मुझे बता देना, वो भी मैं आपको बता दूंगा. ये स्कॉट मिलर हैड ऑलवेज वांटेड टू वर्क फ्रॉम होम. ओके, MCQs को लर्न करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा. इसमें सिर्फ इसमें आपने रॉन्ग ही करना होता है. इसमें आइडेंटिफाई करना होता है, चूज करना होता है कि ये 4 दिए होते हैं ना, 4 में से 2 तो होते ही नहीं है. ये है ही नहीं, ये है ही नहीं. 2 में हमें डाउट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो उन 2 में से देखना होता है आंसर कौन सा है. पहले 2 को क्रॉस कर लो, बाकी जो 2 ऑप्शन रहेगी हैं 4 में से, उनमें से कोई एक आंसर होता है. ये स्कॉट मिलर है. ये जॉन. अगला 10th है जॉन मैककार्थी. 11th लुइस स्टेट. 12th जॉर्ज मिशर. And 13 the writer of this article. Okay, so I guess this video is gonna be long. So मुझे it will make me feel good that if you guys watch the whole video, because पूरी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मैं समझाता रहूंगा. काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से. I can bet on that too. तो पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं. डैश नीड्स टू बी गुड एट मैथ्स. तो मैथ्स कहाँ पे ढूंढते हैं पहले हम. यहाँ पे मैथ्स, जल्दी जल्दी से रीड करना है. मैथ्स मैथ्स मैथ्स. मैथ्स कहाँ गया? आई गेस मैथ्स तो है ही नहीं कहीं पे. मैथ्स मुझे दिखा तो है नहीं. अगला ढूंढते हैं. डैश इज नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड. पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड के बारे में बात हुई है. ये है बिगेस्ट प्रॉब्लम. ऑल्टर्ड देयर हाउस टू बी वर्क एट होम. सी. पहला पैसेज हो गया है मेरा. मैंने सॉल्व कर लिया. उसमें 21 मिनट लग गए मेरे को. तो ना 2nd और 3rd में कर लूंगा. आसान है, हो जाएंगे. एक्चुअली हुआ क्या था इसमें, मेरे को आंसर्स तो मिल गए, मतलब 1 to 8 मिल गए, बट जो 9 to 13 आंसर्स है ना, उनमें मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया कि मैं गलत ऑथर का नाम देख रहा था. मैं बार बार गलत ऑथर का नाम देख के ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने 9 स्किप कर दिया था क्वेश्चन. इस करके मुझे टाइम लग गया. कोई ना, हम करते हैं अगला. अगले में क्या है? अगला है अल्जाइमर्स डिजीज. उसके बाद है ओके, इसमें भी सेम ही है, फिल इन द ब्लैंक्स. देन है इसमें समरी. देन है फिर 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें 2 अदर इंडिकेटर बताने हैं. 14th क्वेश्चन का कीवर्ड आ गया 8 फॉर ब्रेकफास्ट.
15th का आ गया वर्क रिलेटेड रिपोर्ट। उसके बाद 16 का आ गया समवंस नेम। 17 का है फोटोकॉपिंग मशीन। ये इसके कीवर्ड्स हैं। और बाकी 18 to 24 तो है ही समरी। इनमें क्या ही लिखेंगे, इनमें मतलब क्या ही मतलब टिप्स दूं, सिर्फ स्टार्टिंग की लाइन अंडरलाइन कर ले कि मिल जाए। टाइम ओवर हो गया एंड मेरा पैसेज भी सॉल्व हो चुका है। लाइक 40 क्वेश्चन से हमने टाइमर लगाया था 40 मिनट्स का, तो उसमें हो गया है। तो ये 20 मिनट्स पहले हुआ है। मैंने टाइमर इसलिए कम सेट किया था थोड़ा कि एग्ज़ाम में करने में आसानी होएगी। एंड तो अभी आंसर्स चेक करते हैं हम। एक जोड़ी में जस्ट चेक कर लेते हैं आंसर्स क्या आए हैं और मैंने कितने सही है मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड मुझे, तो चेक करते हैं आंसर, इसमें से ऑनलाइन निकाल लेते हैं। जी जी, पता नहीं क्या हो रहा है कि लाइक आंसर्स नहीं मिल रहे यहाँ पे। मैंने काफ़ी तीनों मैसेज का आंसर्स देख रहा हूँ, किसी के आंसर इंटरनेट पे मिल नहीं रहे, अलग से आंसर्स दे रही है ये, लाइक जो प्रेजेंट ही नहीं है। कोई ना, इसको छोड़ो, हम किसी और दिन चेक करेंगे इसके आंसर्स। बट राइट नाउ मैं कुछ रीडिंग की टिप्स दे देता हूँ जो आपके काम आएंगी, आई थिंक सो। तो एक सेकंड में रीडिंग की टिप्स निकालो, मैंने नोट्स में लिखी हुई है यहाँ पे नोट्स कुछ, क्योंकि मुझे आज देखा मैंने यहाँ पे आंसर्स एक तो मिले बहुत मुश्किल से इसमें, मतलब चाहे हो गया 40 मिनट्स में आंसर्स मुश्किल से मिले हैं। और इसके आंसर्स इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है तीनों के, तो कुछ और ही आ रहा है डिफरेंस सा। बहुत ही मतलब मज़ा ही नहीं आया कहते कहते ना। हाँ, तो आपको बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा कुछ बताता हूँ रीडिंग कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। आंसर्स को ना प्रिडिक्ट करने की कोशिश किया करो, लाइक कि एंटिसिपेट पॉसिबल आंसर्स बिफोर रीडिंग द क्वेश्चंस। ये आपको हेल्प करेगा फोकस करने के लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पर, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। मतलब कुछ पॉसिबल आंसर्स आपको लगता है कि ये आंसर हो सकता है, तो उस आंसर को देखो कि हाँ मेरे को ढूंढो, मतलब कि आपको लगता है उसको मार्क करके रख लो, आपको काफ़ी सही रहेगा ये। उसके बाद आता है इम्प्रूव स्पीड एंड कॉम्प्रीहेंशन। ग्रेजुअली वर्क ऑन इंक्रीजिंग योर रीडिंग स्पीड वाइल मेंटेनिंग कॉम्प्रीहेंशन। अपनी स्पीड बढ़ाओ उसको पढ़ने की, सारा सारा नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, जस्ट कि वो कीवर्ड ढूंढना है, उसके सिनोनिम ढूंढने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, डाइवर्सिफाई रीडिंग मटेरियल्स। काफ़ी सारे रीडिंग मटेरियल से पढ़ो, लाइक न्यूज़पेपर से पढ़ो आप, आर्टिकल्स होते हैं, एकेडमिक आर्टिकल्स होते हैं, कुछ काफ़ी सोर्सेज होते हैं। आपको ये ना डिफरेंट टाइप्स की जब आप रीडिंग पढ़ोगे तो आपको राइटिंग कैसे कैसे लिखी हुई है वो रीडिंग जो पार्ट होती है वो समझ लगेगा आपको। कुछ सैंपल टेस्ट से वैसे मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था, ऐसे सैंपल टेस्ट से प्रैक्टिस किया करो, आपको फेमिलियराइज करो अपने आप को इनके आइल्स के रीडिंग टेस्ट फॉर्मेट से। ऑफिशियल सैंपल टेस्ट को फॉलो करो, आपको ये क्वेश्चन टाइप और स्ट्रक्चर समझने में भी हेल्प करेगा। उसके बाद रिव्यू मिस्टेक्स, अपनी जो भी गलतियाँ आई हो उनको देखो कि हमने कैसे किए। ये नहीं देख लिया कि इतने मार्क्स आ गए तो बस, अपनी गलतियाँ नोट डाउन करो और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करो। देखो कि मैंने ये गलती की है, मैंने कहाँ पे की, मैंने क्यों की, मेरे को क्यों आंसर नहीं मिला मुझे, ये सब सोचो खुद। हर प्रैक्टिस सेशन के बाद अपनी जितनी भी गलतियाँ की होती है उनको देखो और आप उन गलतियों से सीखो, मेन बात ये है। उसके बाद आती है टिप, मैं आपको ये लास्ट टिप दे रहा हूँ, ये टिप दैट इज मैनेज टाइम इफेक्टिवली। मैं आपको जैसे स्टार्टिंग में आपको बता नहीं 40 मिनट्स में मैंने किया है, तो अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करो। डेवलप अ स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग योर टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट। अपना एक टाइम स्ट्रेटजी बना लो टेस्ट के ड्यूरिंग कि हमने इतना टाइम ही एलोकेट करना है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम हर एक सेक्शन पर, एक क्वेश्चन को। अगर आपको उसका आंसर नहीं मिला किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के अगले क्वेश्चन पर बढ़ो। एक क्वेश्चन पे कभी स्टक नहीं हो जाना। एक क्वेश्चन पे स्टक हो जाओगे ना, मैं हुआ हूँ बहुत टाइम लग गया था, आपको आंसर नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेट होकर कहते हो कि मैंने करना ही नहीं है। बट पेपर में ऐसा थोड़ा चलेगा, पेपर में तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। सो फॉर दैट रीजन पूरा क्या कहते हैं, एक एक सेक्शन पे सारा टाइम नहीं लगाना, एक क्वेश्चन पे लगाना,
अपना डेडिकेटेड रखो कि मैंने इतना टाइम ही लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पैसेज को 15-15 मिनट भी दे रहे हो, अगर 45 मिनट्स भी टोटल लेते हो, 15 मिनट दे रहे हो, तो हर एक सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से हर एक सेक्शन में फॉर एग्जाम्पल आप 13 क्वेश्चन होते हैं, समझ लो 2 में 13 होते हैं, 1 में 14 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको 13 क्वेश्चन को समझ लो, हर एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1-1 मिनट ही है, फिर ही आप कंप्लीट कर पाओगे इसको टाइम में। हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए 1 मिनट ही है। कुछ हो सकता है कुछ आंसर आपको देखने 1 मिनट लगे ही ना, कुछ आंसर आपको ऐसे मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक आंसर ढूंढने में आपको लग रहा है क्या कहते हैं 2-3 मिनट लग रहे हैं, 4 मिनट भी लग रहे हैं, बट दूसरा आंसर ढूंढने को आपको सिर्फ क्या कहते हैं बाकी 3-4 आंसर ढूंढने को आपको 1 मिनट में सारे मिल गए। ऐसा भी हो सकता है। कुछ होते हैं ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन उन्होंने डालने होते हैं, बट कंफ्यूज नहीं हो रहा कि इसका आंसर नहीं मिल रहा, वो पैसेज में कहीं ना कहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम दे दिया होगा, पैराफ्रेज कर दिया होगा, और अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होगा तो अगर आपको स्टेटमेंट मिल नहीं रही है ही नहीं है, कुछ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसको आप सीधा फॉल्स मार्क कर दो, बात ही खत्म हो जाती है। और क्या कहते हैं अपना टाइम शेड्यूल को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। और एक ही मेथड है इसको क्रैक करने का, कि आपकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और एक सिस्टमैटिक अप्रोच। अगर आपने कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर ली, अप्रोच सिस्टमैटिक बना लिया अपनी, तो बस आप अपने आईएलटीएस के रीडिंग सेक्शन के सभी सेक्शंस को इम्प्रूव कर पाओगे। आपको बताता हूँ, जैसे कुछ बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था, हाँ इसमें क्या था, फॉर एग्जाम्पल ये है, पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के मैंने ऐसे कीवर्ड अंडरलाइन कर लिया, जैसे होता है इनके कीवर्ड मैंने अंडरलाइन कर लिए। जैसे ये कीवर्ड हो गया, इसका पहले का मैंने किया कीवर्ड एट मैथ्स, पहले का मैंने कीवर्ड कर लिया एट मैथ्स। उसके बाद कर लिया सेल्फ एम्प्लॉयड, लॉन्गेस्ट पीरियड, ऑल्टर्ड देयर लाइव्स, कोस्ट, बिजनेस। जैसे मैंने कीवर्ड अंडरलाइन किया, मैंने सारा थोड़ा पढ़ा है। अगर जैसे एमसीक्यू में तो अपने कट डाउन स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है कि आपको पता लग गया 4 ऑप्शन दिए और 4 में से 2 तो है ही नहीं ना, मतलब है तो तीनों नहीं, एक ही आंसर सही होना है, बट हमें 2 तो श्योर हो जाए कि 2 है ही नहीं। उसके बाद हमारे पास 2 रह जाती है कि इन दोनों में से हमें सॉर्ट आउट करना है कि कौन से होंगे, ये मेथड अपनाना है। उसके बाद आ जाता है फिर समरी अगर आपको ढूंढनी है, वैसे तो इसमें दिए हुए थे, बट इसमें आंसर आपने ढूंढने थे 1 2 3 4 5 6, आपने 6-7 आंसर ढूंढने थे, पर आपको ऑप्शंस कितनी दी हुई है, यहाँ तो हद से ज्यादा ऑप्शन दे दी। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6-7 क्वेश्चंस के लिए 16 ऑप्शंस दे दी कि इंसान कंफ्यूज हो जाए। वो आपका लेवल ही इसीलिए तो वो चेक करना चाहते हैं लेवल आइज में, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी कभी। मैं तो वैसे समरी जो है मोस्टली बिना पैसेज पढ़े समझ लग जाती थी। कुछ वर्ड्स जो है, मतलब मैं ये नहीं एडवाइस करें कि पैसेज मत पढ़ो, पर पैसेज पढ़ो, बट आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि कुछ वर्ड्स यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड ही फिट होता होगा या 2 वर्ड फिट होते होंगे, तो उन दोनों वर्ड में से एक वर्ड को एलिमिनेट करके एक वर्ड फिट कर देना, आंसर का आ जाएगा। ऐसे मैंने भी ऐसे किया, मेरा 90% ऑफ टाइम मेरा ऑलमोस्ट सारे सही निकलते हैं इस मेथड से, खास करके समरी में, क्योंकि समरी एक लाइन दूसरे पैराग्राफ की हो सकती है, एक लाइन चौथे पैराग्राफ की भी हो सकती है उसके बाद, और आपको इतना टाइम लग जाएगा पढ़ने में, तो इसलिए इसको ये मेथड अपनाया करो जो मैं अपनाता हूँ, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। लास्ट में आ जाते हैं यस नो नॉट गिवन। यस नो नॉट गिवन का क्या सिस्टम है वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे ये है ना यस नो नॉट गिवन, इसमें क्या होता है समझाता हूँ। यस हमने तभी करना जब हमारी स्टेटमेंट आपको मिली गई है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट इन द सेंस की सेम लाइन कभी नहीं लिखी होगी, सिर्फ आपको ये बताया गया हो सकता है कि उसका पैराफ्रेज किया गया हो सकता है, स्टेटमेंट को कुछ ये घुमा के लिखा हो सकता है, उसके सिनोनिम्स प्रोवाइड किए हो सकते हैं उस वर्ड के, पर स्टेटमेंट पूरी ही होगी वहां पे, सिनोनिम्स पैराफ्रेज करके दिया होगा, ऐसा कुछ किया होगा। नो मतलब स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, आधी इंफॉर्मेशन है या कुछ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है और कुछ इंफॉर्मेशन गलत दी गई है, मतलब इन द सेंस कि आधी इंफॉर्मेशन जो है आधी प्रेजेंट है, आधी नहीं भी सॉरी इंफॉर्मेशन जो है गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेस इफ कंट्रीज कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे डू बेस्ट, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं था, जो पैसेज यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा हुआ है, बट जो पैसेज में कुछ और इकोनॉमिक ग्रोथ था, वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, वहां पे एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम मेंशन किया गया हुआ था। तो यहाँ पे बाकी सारा तो दिया हुआ है, बट एक ये गलत है, वर्ल्ड की जगह कुछ कंट्री का नाम था एक, तो इसको हम नो करेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। उसके बाद आ जाता है नॉट गिवन। नॉट गिवन का मतलब होता है कि आपके किस पैसेज में इस चीज के बारे में बात की ही नहीं गई है, उसमें कोई बात है ही नहीं, ये जस्ट इन्होंने यहाँ क्वेश्चन दिया बट आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट ही नहीं है पैसेज में,
तो अगर आपके राइटर ने कुछ दिया ही नहीं हो, कुछ उसके ओपिनियन है ही नहीं, तब आपने लिखना है नॉट गिवन। एंड लास्ट में आ जाते हैं कुछ, हाँ, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का भी मेन वही तरीका है, कीवर्ड अंडरलाइन करो। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स सारी के एक एक कीवर्ड अंडरलाइन कर लो, उनका एक एक दो कीवर्ड अंडरलाइन कर लो, ऐसे ऐसे करके, और उनका चेक करो कि ये इस चीज के बारे में बात की गई है इस पैसेज में। फॉर एग्जाम्पल होम कीवर्ड है, वहां पे होम के बारे में बात होगी, उस बारे में देखना है इसमें होम है, एक बार होम आ गया ठीक है, 2 बार होम आ गया अच्छे चांसेस है, 3-4 बार जब होम की बात, होम के ऊपर बात हो रही है, तो वो पता लग जाता है कि हमें यही पैसेज में इसमें दिया गया हुआ है, तो ये पता लग जाएगा कि हाँ इसमें है। और अगर इस एग्जाम्पल और उसमें दिया होता क्या कहते हैं, बिल्डिंग दिया होता और यहाँ पे होम 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 है, तो वो इसका आंसर नहीं होता, इसी से एलिमिनेट हो जाता, पता लग जाता कि होम इसका आंसर है, बिल्डिंग इसका आंसर नहीं है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के इन सब चीज़ों को। तो आई होप सो ये वीडियो में कुछ आपको बेनिफिट मिला होगा, कुछ आपने सीखा भी होगा। आज हमें आंसर्स नहीं मिल पाए ऑनलाइन, मैंने बहुत ट्राई किया, आई डोंट नो क्यों नहीं मिले आंसर्स, प्रेजेंट ही नहीं है इंटरनेट पे। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इन द फ्यूचर टाइम्स, अपकमिंग टाइम्स, मैं कुछ और भी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। थोड़ा कल से मैं मेथड चेंज कर लगा हूँ अपना, मतलब पढ़ाने का, कि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी। और कल आई गेस मैं आपके लिए स्पीकिंग के लेके आऊँगा, स्पीकिंग की वीडियो, इसमें मैं खुद स्पीकिंग कर रहा हूँ, तो आपको मैं बताऊंगा कि मैं कैसे स्पीकिंग करता हूँ, उसमें क्या क्या और करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए उसको करने के लिए। तो कल उसकी वीडियो आएगी। और मैंने अभी शॉर्ट डाल दिया हुआ है आज, तो बेसिकली वो जो शॉर्ट है, हाँ वो मैंने शॉर्ट डाल दिया हुआ है अभी आज, वो शॉर्ट वीडियो देख लो आज एक, और उसके बाद अभी ये वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ, तो ज़रूर देखो। अगर आपको कुछ क्वेरीज आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन गुड नाइट, थैंक यू।